چاند نکالا تھا، وہ حسین جن کے رگوں میں شیر سیف اللہ کا خون دوڑ رہا تھا، اس کا نام حسین۔ جب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ حسین سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں بھی حسین کو گرنے نہیں دیا، نماز میں بھی حسین کو گرنے نہیں دیا۔ تو کتنے ذلیل کے حسین، دیکھنا بہت پیاری بات بتا، نماز میں نبی نے حسین کو گرنے نہیں دیا، نماز میں نبی نے حسین کو گرنے نہیں دیا، تو حسین نے نبی کی اس ادا کو اپنے دل میں بسا لیا کہ یا رسول اللہ، نماز جیسی اہم عبادت میں آپ نے مجھے گرنے نہیں دیا، قسم خدا کی کربلا میں حسین آپ کے دین کو گرنے نہیں دے گا۔ نماز میں میرے سرکار نے حسین کو گرنے نہیں دیا، کربلا میں میرے حسین نے سرکار کے دین کو گرنے نہیں دیا، اور بتا دیا اے یزیدیو، میرا نانا کلبی آج اوپر تھا، آج حسین اس کا پوتا آج اوپر نظر آ رہا۔ دیکھنا وہ ہے حسین جس کی ولایت میں علی ہے اور جس کے ذہنیت میں علی ہے، وہ ہے حسین۔ حسین اتنے چہیتے تھے، تم پتا کیا چل رہا؟ اللہ نے اپنی چاہت کو اجاگر کیا تو وہ چاہت مصطفیٰ بنی، اور مصطفیٰ نے اپنی چاہت کو بتایا تو وہ چاہت حسین بنا۔ اب جب وہ چاہت حسین بنا تو اب خدا تک پہنچنے کے لیے پہلے حسین تک پہنچنا ہوگا، اور جب حسین تک پہنچ جاؤ گے تو نبی تک، اور جب نبی تک وہ خدا تک، اور جب خدا تک پہنچ کر چلے جاؤ گے تو الغرب الجنہ، الغرب الجنہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ بخاری شریف کی حدیث دے رہا ہوں، شاید بہت سارے لوگ یہ حدیث کو جب سنیں گے تو ان کے دل میں اور پیٹ میں متلی ہو، متلی ہو بخاری کی حدیث، اسی لیے میں زیادہ بخاری اور مسلم بھی لیتا ہوں۔ دیکھنا آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جب کل قیامت کے دن سب سے پہلے سوالات و جواب کس کے ہوں گے؟ نماز کے، نماز کے سوال ہو جائیں گے۔ بخاری کی حدیث ہے، بہت پیاری حدیث، اگر کوئی اہل سنت اور عاشق اہل بیت ہوگا تو قسم اس کا دل مچل جائے۔ دیکھنا نماز کا سوال ہو جائے گا، حج کا سوال ہو جائے گا، روزے کا سوال ہو جائے گا، تمام چیزوں کے سوالات و جوابات مکمل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، اے فرشتے اہل جنت کو جنت کی طرف لے کر چلو، اے جہنم کے فرشتے جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے کر چلو۔ جب فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ دیکھتے ہوئے، خدا کی بولی پر عمل کرتے ہوئے جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے کر جائیں گے اور جنتیوں کو جنت کی طرف لے کر جائیں گے، تو اللہ آواز دے گا، اے فرشتے رک۔ سوال ہو گئے، جواب بھی ہو گئے، فیصلہ بھی ہو گیا۔ اب فرشتہ پوچھے گا کہ خدا حج کا بھی سوال ہو گیا، نماز کا بھی سوال ہو گیا، جنت و دوزخ کا بھی سوال ہو گیا، آپ نے فیصلہ بھی کر دیا، اب ہو گیا ہر چیز، اب کس لیے اب کس لیے رکنا؟ تو جہنمیوں جب جہنم کے دروازے کے پاس ٹھہرے گے تو کہے گا لو، کہے گا خدا کیا سوال ہے؟ تو اللہ کہے گا، نبی پاک حدیث قدسی میں
नजारे को महसूस करना, और वो महसूस अली के सर पे होता है, किसी घर में नहीं, किसी घर में नहीं होता, किसी पादरियों के मौसम में नहीं होता, नबी के दौलत खाने में हुआ करता है। इसीलिए जब तमाम अंबिया किराम आए इस दुनिया में तशरीफ लाए, तमाम नेमतें बहुत सारे सुने होंगे, 10 मुहर्रम को ये हुआ, मैं ये नहीं बता अकीदा देने के साथ अभी टाइम है। अब मैं आपको बताऊं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, आप आपको बनाते बैठे हुए हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहे, अबू बकर और उमर फारिग भाई, उस्मान और अबू साद भाई भाई, यानी तमाम सहाबी को एक दूसरे का भाई बना रहे हैं। वो दिल में सोच रहे हैं कि नबी ने सबको तो भाई बना दिया, मेरी ना माँ है, मेरे ना बाप है, मेरे इस जहां में कोई नहीं, सबको तो नबी ने सबको एक दूसरे का भाई बना दिया। मेरे बचपन में ही मेरी माँ का इंतकाल हो गया, फातिमा बिन्ते असद का, और देखिए मैं अभी ये बता, फातिमा बिन्ते असद का जब इंतकाल हुआ था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इनके लाश को आप में मत डालना। तमाम लोगों ने कहा क्यों? कहा रुको मत डालना। तो जब हजरत फातिमा बिन्ते असद का कब्र तैयार हो गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कब्र के अंदर गए और सो गए, और सोने के बाद हजरत अब्बास फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हजरत अब्बास कहते हैं नबी पाक ने दुआ किया है, अल्लाह तमाम नबियों के वसीले से, बेवसीलत कुल अंबिया, तमाम नबियों के वसीले से और खासकर मोहम्मद अरबी के वसीले से फातिमा बिन्ते असद की बख्शिश करा, फातिमा बिन्ते असद की बख्शिश करना। हजरत उमर ने हजरत अब्बास से पूछा, ए अब्बास, नबी पाक मेरे ये फातिमा बिन्ते असद की कब्र में क्यों गए थे? तो हजरत अब्बास ने मचल कर कहा कि उमर, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जो चीज नबी के जिस्म से टच हो जाती है, जहन्नम की आग उसे जलाया नहीं करती। और जब नबी पाक फातिमा बिन्ते असद के कब्र में गए तो नबी पाक के जिस्म से मिट्टी टच हो गई। अब वो कब्र फातिमा बिन्ते असद को जलाएगा नहीं, अज़ाब नहीं किया। तो आप जरा देखना, हजरत अली कहते हैं कि मेरी माँ भी नहीं है, मेरे वालिद भी नहीं है, कोई भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? नबी पाक ने अली का चेहरा देख लिया और गैब की खबर मालूम हो गई। जरा बता, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तेरे चेहरे पे क्या लिखा है मालूम है? क्यों? इसलिए कि मैं नबी की तरह नहीं, मैं नबी की तरह नहीं हूँ, मगर नबी तो ऐसे है कि सजदे में हुसैन पीठ पर है तो महसूस हो जाता है कि मेरा हुसैन है। ये तो मानते हैं, मतलब ये तो मानते हैं। अगर बता, ये जब मानते हैं तो हुसैन सामने थे या पीछे थे? पीछे थे ना। तो क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे का भी इल्म है? इसीलिए तो हम कहते हैं कि नबी को दीवार के पीछे का भी इल्म है। दीवार को क्यों? इसलिए कि नबी ने हुसैन को देख लिया, महसूस कर लिया था। अब तो मान बुखारी है। अब जरा देखिए कि जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चेहरा देख लिया, महसूस कर लिया कि अली कुछ सोच में है, अली कुछ सोच में। अब हजरत अली को बुलाया, बुलाने के बाद हाथ पकड़ा। अब जब हाथ पकड़ा, अली का दिल मचलने लगा। अली को सूरज ने सलाम किया, आसमान के तारों ने अली के कदमों में अपनी नूरानियत बिछा दिया। क्यों? इसलिए कि नबी की ज़बान से निकला था, या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, ए अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी तू मेरा भाई है।
के साथ चलते रहो, नबी की सोहबत मिलती रहेगी, क्योंकि जिसमें यारी होता है इसमें कोई गैर जमा नहीं हो सकता। जिसमें यारी की सदाई होती है कभी दुश्मनों का शर आ नहीं सकता। इसीलिए परखना है किसी को तो या अली कह दो, क्योंकि ये वो अमल है जो शजरे लगा देगा। क्यों? ये कि अली अली है, जिनकी अदाओं में नबी नबी है। और एक चीज मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा पॉइंट है। लफ्ज़ अली में 3 हर्फ है। कितने हर्फ हैं? ऐन, लाम, या। लफ्ज़ नबी में भी 3 हर्फ है। नून, बा, या। और लफ्ज़ वली में भी 3 हर्फ है। वाव, लाम, या। नबी ने नबूवत का चश्मा, अली ने अंधेरा, अली ने विलायत का चिराग दुनिया में जला दिया। अब जब विलायत का चिराग अली ने दुनिया में जला दिया, अब जो भी उस चिराग के नीचे आता चला जाएगा, विलायत का सरताज बनता चला जाएगा। अब यही है कि अली अली का नारा लगा दो या अख्तर, अली अली का नारा लगा दो या अख्तर, क्योंकि अली अली है नबी से जो पल लिया करते हैं। अली अली है जो नबी से पल लिया करते हैं। वही अली का परवता है हुसैन, वही अली का किरदारा है हुसैन, फातिमा की नजर का टुकड़ा है हुसैन, और नबी की आंख का तारा है हुसैन। नबी पाक ने हुसैन को अपने सीने से लगाया, नबी पाक ने हुसैन को अपने गोद में पाला, नबी पाक ने हुसैन को अपने रगों में बसाया, नबी पाक ने हुसैन को अपने होठों से छुआ और बता दिया कि हुसैन पर जो जुल्म करेगा वो हुसैनी नहीं बल्कि यजीदी कहलाएगा। हुसैनी बनना है तो हुसैन के कदमों में रहो, क्योंकि हुसैनी वो हुआ करता है जिनके कदमों में क्या हुसैन की सदाएं होती है। मुसलमानों, अगर अपने आप को हुसैनी कहलवाना है तो अपने ज़हन और दिमाग में लफ्ज़ या हुसैन का नारा ऐसे बसा कर रखना, क्योंकि अगर नारा या हुसैन न जाया करता है तुम्हारा दिल साफ हो जाएगा। इसी बुनियाद पे कोई बड़े से इमाम हुसैन से नहीं, बल्कि बचपन से ही इमाम हुसैन की ज़बान पे खुदा बोलता था। क्यों? इसलिए कि नबी पाक ने कहा कि हुसैन की ज़बान नबी की ज़ुबान है। क्यों बोल रहा हूं? हुसैन की ज़ुबान नबी की ज़ुबान है, और नबी की ज़ुबान खुदा की ज़ुबान है। क्यों? अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। बचपन का आलम है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक आप बनाते, बचपन का आलम है। छोटे छोटे बच्चे, उनके साथ हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर है। अब्दुल्ला इब्न उमर हज़रत उमर के बेटे, दोनों बच्चे हम उम्र बच्चे खेलते हैं जैसे आम तौर पर खेलते हैं, दोनों खेला करते थे। अचानक क्या हुआ, दोनों खेलते खेलते एक बाग में चले गए। कहां चले गए? बाग में। किसके बाग? खजूर के बाग। खजूर के बाग में जैसे गए तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर जो थे थोड़े चुलबुले, आज के जबान के एतबार से बोल रहा हूँ, ये नहीं समझना चाहिए, आज की जबान के एतबार से चालाक, होशियार, क्योंकि वो उमर के बेटे। अरे जिनके रगों में वो आशिक़े रसूल का खून हो, जो इस्लाम के लिए अपने सर को कभी नहीं झुकाया बल्कि सर को उतार दिया। थोड़े थे चालाक, चलते चलते एक तरफ के ऊपर चढ़े, खजूर के दरख्त पर। हज़रत अब्दुल्ला ने उमर चढ़ गए तो कुछ पक्षी खजूर खाने लगे। तो हज़रत हुसैन ने कहा, ए अब्दुल्ला इब्न उमर, ए अब्दुल्ला इब्न उमर, मुझे भी कुछ खजूर दो, मैं भी खाऊंगा। तो बचपन का आलम है, तो क्या है, थोड़ा सा रद्दी खजूर जो होता है तो अच्छे खजूर खाने लगे, और रद्दी खजूर हज़रत हुसैन की तरफ थी। हज़रत इमाम हुसैन को क्या गुस्सा